Hello and welcome from Government College Bhadra. This is Manpreet Singh for BA Part 3rd English Literature. We have been reading poetry and drama section. Last poem that we read was Telephone Conversation by Walese Anka. This poem is by Aga Shahid Ali, Postcard from Kashmir. So in this first video we will learn about the poet and his themes. About the poet, this is Aga Shahid Ali. He is dead now, no more in this world now, but he is a renowned Kashmiri American poet. About the poet Aga Shahid Ali, he was born in the illustrious and highly educated Aga family of Srinagar, Kashmir. So he was born in an illustrious and highly educated Aga family. So he was not from a poor family. He had an educated background in his family. He was raised in Kashmir but left for United States in 1976. He was his early childhood was spent in Kashmir, but he left for United States in 1976. Shahid's father Aga Ashraf Ali was a renowned educationist of Jammu and Kashmir. So his father was also a very famous educationist. Shahid's grandmother Begum Jafar Ali, an educationist, was first woman matriculate of Kashmir. So उनकी दादी जो है Begum Jafar Ali, she was the first educationist and first woman matriculate of Kashmir. Shahid was educated at Burn Hall School, later University of Kashmir and Hindu College, University of Delhi. ये उनकी स्टडी के स्थान रहे हैं. He earned a PhD in English from Pennsylvania State University in 1984 and an MFA. ये भी उन्होंने डिग्री हासिल की. From the University of Arizona in 1985, he held teaching positions at 9 universities and colleges in India and United States. 9 अलग-अलग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में उन्होंने पढ़ाया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में भी. So what are his famous works? Works of Aga Shahid Ali. His poetry collections include A Walk Through the Yellow Pages, The Half-Inch Himalayas, A Nostalgic Map of America, The Country Without a Post Office, Rooms Are Never Finished. The latter a finalist for National Book Award in 2001. ये जो आखिरी रचना है Rooms Are Never Finished, ये नेशनल बुक अवार्ड के लिए भी फाइनल में पहुंची थी ये रचना. तो इनका ये पोइट्री कलेक्शंस हैं. उनके वर्क्स के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं. अली एक्सप्रेस्ड हिज लव एंड कंसर्न फॉर हिज पीपल इन मेमोरी ऑफ बेगम अख्तर. उनकी जो पोइट्री वर्क है, पोइटिक वर्क है, इन मेमोरी ऑफ बेगम अख्तर, इसमें उन्होंने अपने पीपल यानी कि कश्मीरी लोगों के प्रति लव एंड कंसर्न शो किया. एंड द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस इसमें भी एंड विच वॉज रिटन विद कश्मीरी कन्फ्लिक्ट एज बैकड्रॉप, जिसमें कश्मीर का जो विवाद है उसे बैकड्रॉप में लेते हुए उन्होंने लिखा. ही वॉज अ ट्रांसलेटर ऑफ द उर्दू पोइट फैज़ अहमद फैज़, द रिबेल्स सिलचे एंड सेलेक्टेड पोएम्स. ये उनकी रचना है जिसमें उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ जो शायर हुए हैं, उर्दू शायर पोइट, उनकी रचनाओं को ट्रांसलेट उन्होंने किया था. एंड द एडिटर ऑफ द मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया सेगमेंट ऑफ जेफरी पेन्स पोइट्री ऑफ आवर वर्ल्ड, उसके वो एडिटर भी रहे हैं. मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया सेगमेंट जो जेफरी पेन की एक पोइट्री ऑफ द वर्ल्ड नाम से एक मैगजीन है, उस मैगजीन का एक संस्करण छपता है. मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया एक अलग वर्जन छपता है उसी का ही. एक तो वर्ल्ड का अलग अलग एरिया वाइज, तो वो मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया सेगमेंट जो था उसके वो एडिटर रहे थे. He further compiled the volume Ravishing Dictionaries, Real Ghazals in English. तो उन्होंने एक वॉल्यूम जो है Ravishing Dictionaries नाम से, जिसका पूरा टाइटल था Ravishing Dictionaries Real Ghazals in English, जिसमें उन्होंने कुछ गज़ल्स को इकट्ठा किया था. ये उन्होंने कंपाइल्ड किया था, यानी कि एक संग्रह इकट्ठा किया था. His last book was Call Me Smile Tonight. उनकी आखिरी बुक का नाम था Call Me Smile Tonight, a collection of English ghazals. अंग्रेजी में लिखी गई गज़ल्स का एक कलेक्शन था. एंड इस पोएम्स आर फीचर्ड इन अमेरिकन अल्फ़ाबेट्स, 25 कंटेम्प्रेरी पोइट्स 2006 एंड अदर एंथोलॉजीज़. और उनकी जो पोएम हैं वो अमेरिकन अल्फ़ाबेट्स यानी कि अमेरिका की फेमस 2 और एंथोलॉजीज़ जो हैं, एंथोलॉजी जिसमें पोइट्री और स्टोरी जिस प्रकार से इकट्ठी की जाती हैं,
फ्रॉम डिफरेंट पोइट्स एंड डिफरेंट राइटर्स। तो उनकी पोइट्री, उनके जो वर्क्स हैं वो उसमें कलेक्ट किए गए थे। ये हैं आगा शाहिद अली। इनकी ये पोएम है, दिस पोएम व्हाट इज़ इट अबाउट, ये बुक का ही एक सेगमेंट है जो आपकी बुक प्रिस्क्राइब है उसमें से। इन पोस्टकार्ड फ्रॉम कश्मीर द ऑथर इज रिमिनिसिंग अबाउट हिज ग्लोरियस चाइल्डहुड इन कश्मीर। तो इसमें कवि क्या कर रहा है, अपना ग्लोरियस चाइल्डहुड फ्रॉम कश्मीर उसे याद कर रहा है। मोर पॉपुलरली नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ, जिसे हम नॉर्मली धरती पे स्वर्ग के रूप में जानते हैं। द स्पीकर हैज़ रिसीव्ड अ पोस्टकार्ड फ्रॉम हिज नेटिव लैंड। इस स्टोरी में जो कंटेक्स्ट है वो ये है इस पोएम में कि जो स्पीकर है उसने एक पोस्ट कार्ड उसे मिला है, एक डाक उसके यहाँ आई है फ्रॉम हिज नेटिव लैंड कश्मीर, एंड हैज़ बीन इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड बैक टू डेज व्हेन कश्मीर हैड नॉट टर्न इनटू अ वार जोन। उस पोस्ट कार्ड को देखने के बाद उस पोएट को फीलिंग आती हैं, अपना बचपन याद आता है, वो समय याद आता है व्हेन कश्मीर हैड नॉट टर्न इनटू अ वार जोन। कश्मीर एक युद्ध भूमि में नहीं बदला था। इन ओपनिंग टू लाइन्स ऑफ poem, the speaker indicates that the postcard contains a photograph of a part of Kashmir, a place the speaker still considers his home। तो उसमें पोस्ट कार्ड के ऊपर एक डाक टिकट की तरह, जैसे डाक टिकट के ऊपर कई बार पिक्चर्स होती हैं, उसी प्रकार से पोस्ट कार्ड के कोने पे एक छोटी सी तस्वीर बनी है कश्मीर की। उस आधे इंच की तस्वीर के बारे में देखने के बाद उसे इंडिकेट करता है कि स्पीकर स्टिल कंसीडर्स हिज होम, उस घर को, उस क्षेत्र को, कश्मीर को आज भी वो अपना घर मानता है। अली himself had moved out of Kashmir and settled in the United States of America, but has always felt a pull to his homeland। आज भी चाहे वो अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गया है, उसे एक पुल फील होता है, खिंचाव सा फील होता है अपने होमलैंड कश्मीर के लिए। His experiences therefore were varied। उसके जो एक्सपीरियंस है वो बहुत प्रकार के थे। कश्मीर के अंदर उसने जो बचपन बिताया था, there was the repentance of having left his home, the denial of feeling like an outsider, and the struggle of coming to terms with the changes that would have unavoidably taken place in his absence। तो उससे ये फील आता है, there was the repentance, पोएम में हमें उसकी रिपेंटेंस फील होती है, पछतावा कि उसने घर छोड़ा। डिनाइल ऑफ फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर, कि अब अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं एक आउटसाइडर फील करूँगा, इस बात से भी वो इनकार करते हैं। और एक स्ट्रगल है, द स्ट्रगल ऑफ कमिंग टू टर्म्स विद द चेंजेस दैट वुड हैव अनअवॉइडेबली टेकन प्लेस इन हिज एब्सेंस। उसके वहाँ से जाने के बाद, कश्मीर छोड़ के अमेरिका जाने के बाद, कश्मीर में जो जो कुछ बदलाव आए होंगे उन्हें एक्सेप्ट करने का, कम टर्म्स मीन्स किसी चीज़ के साथ आप समझौता कर लेते हैं, तो उस समझौता उसके इस पोएम में फील आता है कि कवि कहता है कि हाँ ये बदल गया होगा, नदियाँ बदल गई होंगी या वो मैली हो गई होंगी, तो इस प्रकार से वो याद आता है। His conflict is manifold because as he looks at the photograph, he realizes that those idyllic images only exist in his memory। कि ये जो उसे ऐसा लगता है, उसकी ये जो यादें हैं वो मैनीफोल्ड हैं, कई प्रकार से तहों में हैं, क्योंकि उसे लगता है कि जो तस्वीर जिन इडलिक इमेजेस को वो याद करता है, they only exist in his memory, वो सिर्फ उसकी यादों में है, वास्तव में वो नहीं रही। There is no going back to it because over the years the Kashmiri landscape has also changed। अब वहाँ अगर वो जाता भी है तो उसे वो वास्तविक वही बचपन नहीं मिलेगा, वही जगह नहीं मिलेगी, because Kashmir had changed by time। He knows that his imagination of Kashmir is much beyond what it is in reality। उसे पता है कि उसकी जो यादें हैं, जो उसके मन में कश्मीर है, वो आज के वास्तविक कश्मीर से बहुत बड़ा है, बहुत अलग है, इन रियलिटी से अलग है। And it shows his deep love for the place he belonged to once। और ये उनका एक डीप लव शो करता है to the place that he belonged to once। His long displacement has made his memories a little faded, but still अब काफ़ी समय से वो बाहर रह रहे हैं, he is living in America, so his long displacement has made his memories a little faded। उसकी यादें थोड़ी धुंधा गई हैं, but it is a recollection so pure and ultramarine that he hopes that the recent violence will not affect Kashmir's great heritage। लेकिन ये रिकलेक्शन इतना प्योर और अल्ट्रा मरीन है, दैट्स ही होप्स, उसे लगता है या इस प्रकार की उम्मीद करता, आशा करता है, दैट द रीसेंट वायलेंस, ये जो
रिसेंटली हिंसक घटनाएं कश्मीर में हुई हैं विल नॉट अफेक्ट कश्मीर ग्रेट हेरिटेज, कश्मीर की महान विरासत को अफेक्ट नहीं करेगी। सो दिस इज़ अ पोइट रिमेंबरिंग हिज होमलैंड कश्मीर फ्रॉम अमेरिका थ्रू अ पोस्टकार्ड दैट ही हैड रिसीव्ड। पोएम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पोएम को। इसमें आप पोएट्स के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और इस पोएम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मैंने ये टेक्स्ट शेयर भी किया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।